District Delhi Service at Doorstep Women and Child Development Department 56 Delhi Pension Schemes to Women in Distress E District delhi.gov.nic.in home index.html. This is link. Office of the District Magistrate West, Government of National Capital Territory of Delhi, plot number 3, Shivaji Place, Raja Garden, New Delhi 110027. Quality Policy. Office of the District Magistrate W is committed for good governance for governance for citizen for their governance for citizens for their satisfaction through Office of District Magistrate is committed for good governance of citizen for their satisfactions through effective efficient and transparent administration, citizen-centric and result-oriented services, upgradation of human resource and use of modern technology, continual improvement in the services delivery at the effectiveness of quality management system. गुणवत्ता नीति प्रभावी कुशल और पारदर्शी प्रशासन, जन केंद्रित और परिणाम उन्मुख योजना सेवाएं, मानवीय संसाधनों का उन्नत और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रदान की जाने वाली सेवाओं और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में निरंतर सुधार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट पश्चिम कार्यालय जनता को संतोषजनक शासकीय सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट, राजा गार्डन, दिल्ली। Office of District Officer West, Department of Women and Child Development, Government of NCT of Delhi, Nirmal Chhaya Complex, Jail Road, New Delhi 110064. F number DOW DWCD PGMS 80 2023 24537, date 16/6/2023. Grievance received on PGMS portal 10 July 2023 to 16/6/2023. Grievance resolved close. Number of pending grievances pending. Provide the region in attached sheet. Grievance received on CP Grams portal 10/6/16/6. Grievance resolved close. Number of pendency grievances pending. Provide the regions in attached sheet. Grievance received on listing post
of Lieutenant Governor Portal 10-6 to 16-6. Grievance resolved, closed. Number of pending grievances pending. Provide the regions in attached sheet, nil. To the District Magistrate West, Nirmal Chhaya Complex, Harinagar. Subject: request for correction in record of Delhi Ladli Scheme 2008. Madam, I have applied under Delhi Ladli Scheme 2008 for myself, my daughter, wide ID number. The following corrections may please be made in your records and enclosing required documents proof for said corrections. Correction name DOB written in Delhi Ladli Scheme record. Your faithfully enclosed as attached. Mobile, date, number. दिल्ली सरकार की आर्थिक सहायता योजनाएं: विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा महिला पेंशन योजना। फॉर ऑल दिल्ली स्कीम्स ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल। दिल्ली सरकार की आर्थिक सहायता योजना, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा महिला पेंशन योजना। पात्रता: प्रार्थी पिछले 5 वर्षों से दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। प्रार्थी की व्यक्तिगत वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो। प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रार्थी अन्य किसी संस्था, विभाग या से पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो। आवश्यक कागजात: दिल्ली में निवास का 5 साल का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य। बैंक खाते की प्रतिलिपि, एकल खाता, सिंगल अकाउंट। पति की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दूसरी शादी न करने का शपथ पत्र। पति के गुमशुदा होने की थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि। दिल्ली महिला आयोग में दर्ज शिकायत की प्रतिलिपि अथवा कोई अन्य दस्तावेज जो यह दर्शाए कि महिला अपने पति से अलग रहती है। विधवा महिला की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता। यह सहायता केवल 2 पुत्रियों तक सीमित है। पात्रता: दिल्ली की 5 वर्ष से स्थायी निवासी। प्रार्थी की व्यक्तिगत वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो। लड़की की आयु 18 वर्ष से कम न हो। आवेदन शादी के 60 दिन पहले या 60 दिन बाद तक ही दी जा सकता है किया जा सकता है। आवेदन शादी के 60 दिन पहले और 60 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। आवश्यक कागजात: दिल्ली में निवास का 5 साल का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्वयं घोषित शपथ पत्र की लड़की के लिए किसी और संस्था से सहायता न ले रही हो। स्वयं घोषित आय प्रमाण पत्र, एफिडेविट, बैंक खाते की प्रतिलिपि। शादी
का निमंत्रण पत्र। लाडली योजना पात्रता। माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो। पंजीकरण कराते ही दिल्ली सरकार आपकी बेटी के नाम 10,000 रुपये से खाता खुलवाएगी। यदि बालिका का जन्म अस्पताल या प्रसूति गृह इत्यादि में हुआ हो तो 11,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9th में दाखिला तथा कक्षा 10वीं पास करने पर और कक्षा 12वीं में दाखिला लेने पर सरकार पुनः आपकी बेटी के खाते में 5,000 रुपये जमा कराएगी। आपकी लड़की के 18 वर्ष पूरे होने के पश्चात 10वीं कक्षा दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पास करने पर उसके खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। आवश्यक कागजात। आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का 3 वर्ष का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र अथवा अन्य प्रमाण। 2 बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी। 3 प्रार्थना पत्र पर माता पिता व बालिका का संयुक्त फोटो लगाएं। नोट: आवेदन दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल e-district.delhi.gov.nic.in पर कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार। 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वेस्ट, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, हरिनगर। सब्जेक्ट: रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली लाडली स्कीम 2008। Madam, I have applied under Delhi Ladli Scheme 2008 for myself, my daughter, wide ID number, my daughter correct name is whereas in record of Delhi Ladli Scheme my name is written as which is incorrect. So I request you to kindly correct my daughter's name in your record accordingly. Yours faithfully. Mobile number, date. लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु जन्म एवं स्कूल संबंधी फॉर्म, पहचान संख्या, आईडी नंबर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सेवा कुटीर कॉम्प्लेक्स, किंगजीवे कैंप, नई दिल्ली 110009। जिस परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख से कम है, केवल वही बालिका लाडली योजना के लिए आवेदन करें। क्या इस बालिका का पंजीकरण लाडली योजना में किया जा चुका है, और यदि हाँ तो SBIL के पत्र की कॉपी संकलन करें एवं संबंधित स्कूल को अवश्य सूचित करें। नवीनीकरण के लिए इस फॉर्म के पीछे दिए गए निर्देश देखें। माता पिता व बालिका का संयुक्त फोटो। 1 बालिका का नाम हिंदी में, बालिका का नाम अंग्रेजी में। नाम एवं उपनाम के बीच एक डिब्बा खाली रखें। कृपया नाम आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप लिखें। कन्या भ्रूण हत्या पाप एवं कानूनी अपराध है। जन्म तिथि 2 जन्म स्थान अस्पताल नर्सिंग होम पर। 3 दिल्ली में जन्म के प्रमाण पत्र
की पंजीकरण राशि, जारी होने की तिथि, जारीकर्ता एजेंसी, रजिस्ट्रार एवं मृत्यु द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। 4 बालिका के पिता का नाम। 5 श्रेणी SC ST OBC जनरल यदि लागू हो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। 6 वर्तमान पता, दिल्ली में रहने का 3 साल का प्रमाण पत्र संलग्न करें। पिन कोड, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, विधानसभा क्षेत्र संख्या, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। दूरभाष नंबर या मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। 7 परिवार वार्षिक आय अंकों में, शब्दों में आय प्रमाण पत्र संलग्न करें। 8 प्रार्थी की पुत्रियों की संख्या, इस पुत्री के अलावा कितनी पुत्रियों के लिए लाडली योजना में पंजीकरण करवा चुके हैं? यदि हाँ तो ग्रुप मेंबर ID लिखें। यह सहायता तो पुत्रियों तक सीमित है। 9 आधार कार्ड संख्या, माता पिता बालिका, माता पिता तथा बालिका के आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें। 10 क्या किसी अन्य राज्य की इस प्रकार की योजना से लाभ ले रहे हैं? हाँ, नहीं। यदि हाँ तो योजना का नाम, पंजीकरण संख्या, राज्य, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। बर्थ केस, स्कूल केस ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बाय दिल्ली गवर्नमेंट, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। दिनांक, बालिका का नाम, जन्म तिथि, बालिका की माता का नाम, बालिका के पिता का नाम, वर्तमान पता, अनुलग्नक आधार कार्ड, वर्तमान पते की प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। कृपया इस रसीद को संभाल के रखें। कृपया पीछे दिए गए दिशा निर्देश पढ़ें। हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता, नाम एवं पदनाम, जिले का नाम एवं पता। स्कूल द्वारा भरा जाएगा। अगर बालिका स्कूल में पढ़ती है तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान अवश्य भरें। बालिका की फोटो, कक्षा, सेक्शन, विद्यालय का नाम एवं पता, सरकारी प्राइवेट, विद्यालय कोड ID, विद्यार्थी कोड संख्या, आधार नंबर, बालिका का, कक्षा अध्यापिका के हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर। घोषणा पत्र, मैं पुत्र पुत्री पत्नी श्री घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त मेरी जानकारी पूर्णतः सही है। यदि इसमें कोई सूचना गलत पाई गई तो मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है एवं लाभ की राशि ब्याज समेत वापस ली जा सकती है। बालिका के पिता के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, बालिका के माता के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान। कार्यालय प्रयोग के लिए, जांचकर्ता के लिए नाम, पदनाम, हस्ताक्षर। स्वीकृति करने वाले के लिए नाम, पदनाम, हस्ताक्षर। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज की फोटोकॉपी संलग्न करें। दिल्ली में रहने का 3 वर्ष का प्रमाण, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बिजली पानी टेलीफोन का बिल। बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी। प्रार्थना पत्र,
पर माता पिता व बालिका की संयुक्त फोटो, माता पिता की आय का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र मूल प्रति, माता पिता व बालिका का आधार कार्ड। आवेदन के लिए दिशा निर्देश। 1. प्रार्थना पत्र बालिका की जन्म तिथि से 1 वर्ष के अंदर अपने जिला कार्यालय में जमा कराएं। 2. प्रार्थना पत्र विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितंबर तक जमा कराना होगा, अन्यथा उस पर विचार नहीं होगा। नवीनीकरण रिन्यूअल जिला कार्यालय में बालिका का लड़की लाडली योजना में पंजीकरण हुआ था। उसी जिला कार्यालय में बालिका के कक्षा 1, 6, 9, 11 व 12वीं में दाखिला लेने पर होगा। अतः माता पिता इन कक्षाओं में बालिका का प्रवेश होते ही अप्रैल से जून में आवश्यक दस्तावेज विद्यालय में जमा कराएं व नवीनीकरण कराएं। स्कूल के माध्यम से आने वाले पंजीकरण नवीनीकरण उसी जिला कार्यालय में जमा होगा जिस जिला के अंतर्गत स्कूल आते हैं। 5. डाक द्वारा भरे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 6. परिपक्वता राशि मैच्योरिटी क्लेम बालिका के 18 वर्ष होने पर तथा 10वीं कक्षा पास करने पर अथवा 12वीं कक्षा पास होने के बाद ही प्राप्त की जा सकेगी। 7. अपवाद स्वरूप मामले एक्सेप्शन केसेस में संबंधित महिला एवं बाल विभाग जिला अधिकारी लाडली योजना के सक्षम अधिकारी होने के नाते अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 8. लाडली योजना का फॉर्म जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभागीय वेबसाइट, SBI बैंक, स्कूल से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट वेबसाइट www.wcddel.in। लाडली शपथ पत्र में पत्नी पुत्र निवासी दिल्ली सत्यनिष्ठा पूर्वक बयान करती हूँ। 1. मेरी पारिवारिक सालाना आय है। 2. मेरी पुत्रियों की संख्या। इस पुत्री के अलावा लाडली योजना में पंजीकृत करवाया है? हाँ, नहीं। यदि हाँ तो पुत्री का नाम, ग्रुप नंबर ID लिखें। 3. मेरे द्वारा दिए गए विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि इसमें कुछ सूचना गलत पाई जाती है तथा मेरे विरुद्ध पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है एवं लाभ की राशि ब्याज समेत वापस ली जा सकती है। शपथ करता हूं। लाडली शपथ पत्र मैं पुत्र पुत्री निवासी दिल्ली सत्यनिष्ठा पूर्वक बयान करती हूँ। 1. मेरी पारिवारिक सालाना आय है। 2. मेरी पुत्रियों की संख्या। इस पुत्री के अलावा लाडली योजना में पंजीकरण करवाया है? हाँ, नहीं। यदि हाँ तो पुत्री का नाम, पुत्री ग्रुप नंबर ID लिखें। 3. मेरे द्वारा दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि इसमें कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है एवं लाभ की राशि ब्याज समेत वापस ली जा सकती है। शपथ करता। 2. डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वेस्ट, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, हरिनगर,
Subject: request for correction in record of Delhi Ladli Scheme 2008. Madam, I have applied under Delhi Ladli Scheme 2008 for myself, my daughter, wide ID number. The following correction may be please be made in your record and enclosing required documents proof for the said corrections. Correction name DOB written in Ladli scheme record. Yours faithfully, enclosed as stated, mobile number, date. शपथ पत्र: मैं श्रीमती कुमारी, पत्नी स्वर्गीय श्री, पुत्री श्री, निवासी दिल्ली, सत्यनिष्ठा पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं कि एक, मैं दिल्ली में पिछले 5 वर्ष से अधिक वर्ष से दिल्ली में स्थायी निवासी हूं। 2, सभी स्रोतों से मेरी पारिवारिक वार्षिक आय है। 3, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है। आर्थिक सहायता हाँ नहीं। क्या इससे पहले पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता ली गई है? एक, पुत्री के विवाह हेतु ली है। एक, पुत्री के विवाह हेतु ली है पुत्री का नाम। 2 पुत्री के विवाह हेतु ली है पुत्रियों के नाम। 5, मैंने किसी अन्य विभाग जैसे केंद्रीय सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली पालिका अथवा सरकारी एवं गैर सरकारी किसी संस्था या संगठन से विधवा पुत्री हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही कर रही हूं। 6, मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। अगर कोई इसमें जानकारी असत्य पाई गई तो सरकार मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आवेदक के हस्ताक्षर। अनाथ कन्या की शादी हेतु कन्या का नाम के माँ बाप मर चुके हैं। रिश्ते में उसकी लगती है, उसकी लगती हूँ। मैं उसकी संरक्षक हूँ और मैं का पालन किया है और मैंने उसकी शादी में खर्च किया है, करता हूँ, करना है। आवेदक के हस्ताक्षर। कार्यालय प्रयोग के लिए आवेदनकर्ता ने मेरे सामने उपरोक्त सभी सूचना दस्तावेज आवेदनकर्ता ने कार्यालय में दिए हैं। सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से जांच लिए हैं। कर्मचारी के हस्ताक्षर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेस्ट, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, हरिनगर। सब्जेक्ट: रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली लाडली स्कीम 2008. मैडम, I have applied under Delhi Ladli Scheme 2008 for myself, my daughter, wide ID number. My daughter correct name is where in record Delhi Ladli Scheme name is written as, which is incorrect. I have requested you to kindly correct my daughter name. So I request you to kindly correct my daughter name in your record accordingly. Yours faithfully, mobile number, date.
SBI लाइफ इंश्योरेंस लाडली योजना 2009, महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली NCT सरकार। लाडली स्कीम 2008, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। अनुक्रमांक नवीनीकरण प्राप्ति तथा धनराशि। नवीनीकरण प्राप्ति तथा धनराशि। मिशन रिन्यूअल एक्नॉलेजमेंट कम फंड सेटलमेंट। SBI लाइफ धनराशि। लाडली योजना 2008 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली NCT सरकार द्वारा कार्यान्वित। फॉर लाडली स्कीम 2008 इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। मास्टर पॉलिसी विवरण। मास्टर पॉलिसी डिटेल्स। मास्टर पॉलिसी धारक का नाम महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली NCT सरकार। नेम ऑफ द मास्टर पॉलिसी होल्डर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। मास्टर पॉलिसी अनुक्रमांक। मास्टर पॉलिसी नंबर 620010000104। ग्रुप मेंबर्स विवरण। ग्रुप मेंबर्स डिटेल्स। फादर नेम, एड्रेस टू सिटी, पिन कोड। मदर्स ग्रुप मेंबर, माता ग्रुप मेंबर, पिता फादर, माता मदर, पता एड्रेस 1, ग्रुप मेंबर, ग्रुप मेंबर आईडी, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, राज्य स्टेट, शहर सिटी, पिन कोड। बीमा संबंधी विवरण। कोविड कवर्ड डिटेल्स। माइलस्टोन कोड एंड योगदान राशि, कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जिला कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, निर्वाचन आयोग कोड, कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड, मैच्योरिटी की तारीख, मैच्योरिटी डेट, जिला पता, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, जेल रोड, न्यू दिल्ली। शामिल होने की तिथि, ज्वाइनिंग डेट, बीमा राशि, सम एश्योर्ड, जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्कूल कोड। फंड डिटेल, धनराशि विवरण, शुरूयता राशि, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन डेट, योगदान राशि, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर माइलस्टोन एंड वर्तमान धनराशि, फंड बैलेंस, डेट। माइलस्टोन अवस्था, माइलस्टोन स्टेज 0, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर ऑन एडमिशन इन क्लास 1, S कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर, O एडमिशन इन क्लास 6 एंड कक्षा 9 में प्रवेश पर ऑन एडमिशन इन क्लास 9 कक्षा 10 में नियमित छात्रा के रूप में पास करने पर ऑन पासिंग क्लास 10 एज रेगुलर स्टूडेंट, T कक्षा 12 में प्रवेश करने पर ऑन एडमिशन ऑफ क्लास 12। प्रार्थी से अनुरोध है कि वह इस
पावती रसीद को सुरक्षित स्थान पर रखें। द मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू कीप दिस एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इन सेफ कस्टडी। बालिका का नाम के अंतर्गत किए गए भुगतान के विवरण न तो कोई ऋण न ही अन्य कोई क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवधि से पहले भुनाया नहीं जा सकता न ही इसे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम लिया जा सकता है और न ही रकम लौटाई जा सकती है। नो लोन और एनी अदर credit facility can be provided against contribution made under the name of the girl child. It is non-transferable, refundable and ineligible for pre-mature encasement. This is system generated statement and does not require signature. दिनांक डेट 2 दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वेस्ट निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स हरिनगर। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर स्टॉपेज ऑफ विडो पेंशन। मैडम, my mother namely was drawing widow pension from your office and now she expired on, so I request that her widow pension may please be stopped. I am enclosing that certificate and other required documents along with this application. Yours faithfully, address, mobile number, date. महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पंडित रवि शंकर शुक्ल लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001। आर्थिक सहायता अनुभाग। घोषणा पत्र। मैं प्रमाणित करता हूं कि एक आवेदन योजना के समकक्ष में किसी भी अन्य विभाग, केंद्रीय राज्य सरकार, दिल्ली नगर निगम इकाई, नई दिल्ली नगर निगम या अन्य से कोई आर्थिक सहायता या सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हूं। 2 मेरी व्यक्तिगत वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रुपए है। 3 मैं विधवा, विवाह, विच्छेद, तलाकशुदा, पृथक, निराश्रित, परित्यक्ता महिला हूं और मैंने अभी तक पुनः विवाह नहीं किया है। यदि मैं पुनः विवाह करूंगी तो इसकी सूचना विभाग को अवश्य दूंगी। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है। अगर कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार अवश्य कार्रवाई कर सकता है। दिनांक, स्थान, आवेदिका के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, नाम पिता, पति का नाम, पता, फोन नंबर। कृपया यहाँ नीचे निशान लगाए गए दस्तावेज को साफ एवं 200 KB तक अपलोड करें। बैंक पासबुक के पहले पेज, खाते व नाम का पेज के साथ आखिरी पेज, लेटेस्ट एंट्री का पेज अपलोड करें। पति की मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। 5 वर्ष का दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र अपलोड करें। सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करें। एज प्रूफ अपलोड करें। आधार अपलोड करें। आइडेंटिटी प्रूफ वाले स्लॉट में, ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स 1 वाले स्लॉट में, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स 2 वाले स्लॉट में, पासबुक का आखिरी पेज, लेटेस्ट एंट्री अपलोड करें। ऑब्जेक्शन क्वायरी
नीचे बताए गए तरीके से हटाएं। लॉगिन, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन नंबर, क्वारी रेज्ड, जस्टिफाई, अपलोड। लाडली के लिए लेटर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर डालें लाडली फंड वैल्यू, क्लिक करें लाडली फंड एसबीआई लाइफ कॉरपोरेशन कॉरपोरेट सॉल्यूशन, क्लिक करें लाडली फंड एसबीआई लाइफ कॉरपोरेट सॉल्यूशन। लाडली मेंबर डिटेल्स, पॉलिसी नंबर, ग्रुप मेंबर आईडी, मेंबर डीओबी, इंटर कैप्चा, सबमिट। लाडली एक्नोलेजमेंट रिसीप्ट। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी, documents required for maturity claim on completion of age 18 years and passing on 10th class and 12th class maturity. The following documents are required to submit. 1. Ladli slip letter in original, 10th certificate, 12th certificate. 4. Saving account clear copy with current transactions entry cop. 5. Copy of Aadhaar card of applicant Ladli. 6. All documents to be signed by applicant Ladli and must write mobile number. Documents required for maturity claim on completion of age 18 years and passing of 10th class and 12th class. On maturity, the following documents are required to be submitted. 1. Ladli slip letter in original. 2. 10th certificate. 3. 12th certificate. 4. SBI saving account clear copy with current transaction entry copy. 5. Copy of Aadhaar card of applicant Ladli. 6. All documents to be signed by applicant Ladli and must write mobile number. Documents required for new form applied on birth class first, second, birth class first, 6, 9, 12th, 11, 12th can file new form. 1. Applicant birth certificate Delhi. 2. Joint photo applicant with other and father. Applicant Aadhaar card Delhi. 4. Father Aadhaar card Delhi. 5. Mother Aadhaar card Delhi. 6. 3-year-old residential proof of mother father voter ID, ration card, electricity bill, water bill, driving license, gas connection slip, LIC slip, income affidavit, income declaration. 8. Private school EWS letter head or free ship.
एजुकेशन ऑफिसर साइंड एंड स्टैम्प ऑन लाडली फॉर्म बैक साइड. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल: लाडली स्लिप फोटोकॉपी, एप्लीकेंट आधार कार्ड फोटोकॉपी, बोनाफाइड लेटर हेड बाय स्कूल फी स्लिप, स्कूल कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन व विधवा महिला की पुत्री विवाह हेतु आर्थिक सहायता के लिए पात्र महिलाएं डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 1076 पर संपर्क कर घर बैठे आवेदन कर सकती हैं. लाडली मैच्योरिटी राशि प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज: मैच्योर बेनिफिशियरी फॉर फाइनल पेमेंट अंडर लाडली स्कीम हैज पास 12th and attained the age of 18 years are directed to arrange and submit the following documents in the prescribed order. Only SBI saving account passbook in favor of beneficiaries. New entry in passbook, either the cash deposit or withdrawal. All original letters and slip issued from Ladli sections. Mark sheet and certificate of passing class 10th and 12th issue from CBSE. Ladli आधार कार्ड टाइमिंग 10 to 1 PM सोमवार से शुक्रवार. नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज: 1 लाडली स्लिप की फोटोकॉपी, 2 बच्चे का आधार की फोटोकॉपी, 3 स्कूल का लेटर हेड फीस के लिए आई कार्ड, इसमें से कोई एक ग्रुप स्कूल का. फॉर डिटेल विजिट www.wcd.del.in. कृपया ध्यान दें, आपकी पेंशन प्राप्त हो सके इसके लिए आप सुनिश्चित करें अपने आधार कार्ड, बैंक खाता NPCI मोड में लिंक. अपने बैंक खाते में भी KYC होना आवश्यक है. आपकी NPCI से लिंक हुआ बैंक खाता सक्रिय एक्टिव. लाडली मैच्योरिटी राशि प्राप्त करने के लिए दस्तावेज: मैच्योर्ड बेनिफिशरीज फॉर फाइनल पेमेंट अंडर लाडली स्कीम विच हैव who have passed 12th and attained the age of 18 years are directed to arrange and submit the following documents in the prescribed order. Only SBI account passbook in favor of beneficiaries. New entry in passbook, either in cash deposit or withdrawal. All original letter and slip issued from Ladli sections. Mark sheet and certificate of passing 10th 12th issued from CBSE. Beneficiaries आधार कार्ड टाइमिंग 10 AM to 1 PM. नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज: 1 लाडली स्लिप की फोटोकॉपी, 2 बच्चे का आधार की फोटोकॉपी, 3 स्कूल का लेटर हेड फीस स्लिप, आई कार्ड, इसमें से कोई एक ग्रुप स्कूल का. wcd.del.in. लाडली का नया फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज: जन्म पर 1 वर्ष से कम, पिछली कक्षा में 5 प्लस 6 वर्ष से कम, छठी कक्षा में 10 प्लस 12 वर्ष से कम, 9वीं कक्षा में 13 प्लस 15 वर्ष से कम, 11वीं कक्षा में 15 प्लस 17 वर्ष से कम, 12वीं कक्षा में 16 प्लस 18 वर्ष से कम. 1 प्रार्थना पत्र पर संयुक्त फोटो बच्चे की माता पिता के साथ पासपोर्ट साइज. 2 दिल्ली में रहने का 3 वर्ष का प्रमाण
सिर्फ बच्चे के माता पिता का राशन कार्ड, पहचान पत्र, बिजली पानी टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन स्लिप, LIC स्लिप। 3 बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी। 4 माता पिता की आय का प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र मूल प्रति। 5 माता पिता व बालिका का आधार कार्ड दिल्ली का। नोट, प्राइवेट स्कूल के लिए नए फॉर्म पर 1 प्रिंसिपल के हस्ताक्षर व स्टैंप, 2 शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर व स्टैंप, 3 EWS लेटर हेड, फीस स्लिप। कृपया ध्यान दें, आपकी पेंशन प्राप्त हो सके इसके लिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप आधार अपने बैंक खाते में NPCI मोड पर लिंक होना चाहिए। आपके बैंक खाते में KYC होना चाहिए। आपका NPCI लिंक हुआ बैंक खाता सक्रिय एक्टिव होना चाहिए। पेंशन सहायता आपके द्वारा प्रदान किए गए आधार संख्या को भेजी जाती है तथा आधार के द्वारा NPCI लिंक आधारित बैंक खाते संख्या में जमा होती है। यह पेंशन सहायता आपके आधार संख्या पर आधारित है, आपके द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाता संख्या पर आधारित नहीं है। सेवा में जिला अधिकारी पश्चिम महिला एवं बाल विकास विभाग, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, दिल्ली 64। महोदय, मैं प्रमाणित करती हूं कि मैं विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिला हूं तथा दिल्ली की स्थायी व वर्तमान निवासी हूं। मैं किसी भी अन्य निजी व सरकारी संस्था में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रही हूं। मेरी सभी स्रोतों से वार्षिक आय है। कृपया मेरी पेंशन का पुनः प्रारंभ कर दिया जाए। बैंक का नाम, बैंक ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, MICR नंबर, IFSC नंबर, आधार नंबर, दस्तावेज संलग्न करें। आधार कार्ड, पिछले 1 वर्ष की एंट्री सहित बैंक पासबुक, यदि पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण, नाम पति पिता का नाम, मोबाइल वर्तमान पता, वर्ग SC ST जनरल, दिनांक, हस्ताक्षर। पेंशन बंद कराने के लिए आवेदन। सेवा में जिला अधिकारी पश्चिम महिला एवं बाल विकास विभाग, निर्मल छाया परिसर, जिला जेल रोड, दिल्ली 94। महोदया, लाभार्थी के बैंक की जानकारी बताएं। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, MICR नंबर, IFSC नंबर, आधार नंबर। प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पति पिता का नाम, प्रार्थी का मोबाइल, प्रार्थी का वर्तमान पता। यह दस्तावेज संलग्न करें। लाभार्थी का आधार कार्ड, लेटेस्ट एंट्री सहित बैंक पासबुक की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रार्थी का स्वयं कोई पहचान पत्र, दिनांक, प्रार्थी के हस्ताक्षर। कृपया यहाँ नीचे निशान लगाए गए दस्तावेज को साफ एवं 200 KB तक अपलोड करें। बैंक पासबुक के पहले पेज, खाते का नाम का पेज के साथ आखिरी पेज, लेटेस्ट एंट्री का पेज अपलोड करें। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
5 वर्ष का दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र अपलोड करें, सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करें, एज प्रूफ अपलोड करें, आधार अपलोड करें, आइडेंटिटी प्रूफ वाले स्लॉट में, ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स 1 वाले स्लॉट में, ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स 2 वाले स्लॉट में बुक बैंक पासबुक का आखिरी पेज लेटेस्ट एंट्री अपलोड करें। ऑब्जेक्शन क्वेरी को नीचे बताए गए तरीके से हटाएं। लॉगिन रिपोर्ट्स एप्लीकेशन नंबर क्वेरी रेज्ड जस्टिफाई अपलोड। आधार का बैंक लिंक आधार की वेबसाइट पर चेक करें। कृपया नीचे बताए गए लिंक का प्रयोग करें। resident.uidai.gov.in/बैंक में पर आपका आधार NPCI मोड से लिंक चेक करने के लिए पेज दिखाई देगा। अपना आधार नंबर डालें, कैप्चर कोड डालें, OTP भेजें। आपको OTP प्राप्त होगा। आधार से जुड़े नंबर पर OTP डालें और सबमिट करें। आधार लिंक स्टेटस चेक करें। यदि आपका आधार लिंक होगा तो स्टेटस में एक्टिव दिखेगा। वह लिंक होने की तारीख और जिस भी बैंक में लिंक होगा उस बैंक का नाम भी दिखेगा। नोट: सभी प्रक्रिया में कई बार आधार वेबसाइट सर्वर के कार्य नहीं करने की परेशानी होती है, इसलिए अलग अलग समय में पुनः प्रयास करें। कृपया यहां नीचे निशान लगाए गए दस्तावेज को साफ एवं 200 KB तक अपलोड करें। बैंक पासबुक का पहले पेज, खाते के नाम का पेज के साथ आखिरी पेज, लेटेस्ट एंट्री का पेज अपलोड करें। पति की मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। 5 वर्ष का दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र अपलोड करें। सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करें। एज प्रूफ अपलोड करें। आधार अपलोड करें। आइडेंटिटी प्रूफ वाले स्लॉट में, ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स 1 वाले स्लॉट में, ऑप्शन डॉक्यूमेंट 2 वाले स्लॉट में पासबुक का आखिरी पेज लेटेस्ट एंट्री अपलोड करें। ऑब्जेक्शन क्वेरी के नीचे बताए गए तरीके से हटाएं। लॉगिन रिपोर्ट्स एप्लीकेशन नंबर क्वेरी रेज्ड जस्टिफाई अपलोड। आधार को बैंक खाते से लिंक करने के लिए आधार सेंडिंग NPCI मैपिंग। आधार को बैंक खाते से NPCI मैपर DBTL मोड पर लिंक करें, जैसे कि आधार लिंक्ड गैस सब्सिडी पाने के लिए किया जाता है। इससे विधवा पेंशन व विधवा की पुत्री के विवाह हेतु लाभार्थी PFMS पोर्टल के आधार के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग TCPC कैंप अशोकनगर तिलक नगर पास गुफावाला मंदिर दिल्ली 110018। NPCI एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग DBT benefits into bank account NPCI mapping. The branch manager date branch bank dear sir account number in AC name linking sending Aadhaar in NPCL mapping for receiving direct benefits. I am maintaining a bank account number with your bank. 2. I submit my Aadhaar number and voluntarily giving my account consent to use my Aadhaar details to
authenticate me for UIDAL use my mobile number mentioned below for sending SMS alert to me. Link the Aadhaar number to all existing, new, future account and customer profile CIF with your bank. Signature thumbnail of customer. Option for receiving debt benefits. Tick 1. Option for receiving debt benefit. Tick 1. I wish to seed my account number with NPCI Mapper to enable me to receive direct benefit transfer DBT including LPG subsidy from Government of India GOI in my above account. I understand that if more than one benefit transfer is due to me, I will receive all the benefits transfer in the same account. For customer who have not so far seeded account with NPCI Mapper, I already have an account with name of bank having IIN number and seeded with NPCI Mapper for receiving DBT from GOI. I request you to change my NPCI mapping DBT benefit account to my account with your bank. I already have an account with another bank, name of bank having IIN number and seeded with NPCI mapping for receiving DBT from GOI. I do not want to change my NPCI mapping DBT benefit account from the existing bank. I do not wish to seed my account from your bank with NPCI mapping. I will not be getting DBT. I have been explained about nature of information that may be shared upon authentication. I have been given to understand that my information submitted to the bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned above or as per requirements of law. I hereby declare that all the above information voluntarily furnished by me is true, correct and complete. Yours faithfully in consent sent through BC BDO VO. Signature thumb impression of customer. I hereby authorize the banking correspondent name, mobile number, email. I hereby authorize to Sarpanch VO BDO to submit the above consent letter to the bank. Signature thumb impression of customer. Enclosed copy of Aadhaar.
NPCI mapping is a process of accounting a bank with Aadhaar number which is facilitated by NPCI for direct benefit transfer to the respective bank who have linked the Aadhaar number to a specific bank account for receiving direct benefit to which customer has given the account. IIN number will be provided by bank receiving the consent application. List of superintendents of home, Nirmal Chhaya Complex, Harinagar. Serial number, name of home, name of in charge, contact number. One short stay home, two widow home, 3 Nari Niketan, 4 OHG, 5 place of safety, 6 aftercare, 7 Balika Niketan, 8 Balika Grah, 9 CHG 1, 10 CHG 2, 11 CHG 3, 12 CHG 4, 13 foster care home, आजादी का अमृत महोत्सव, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण। वी केयर यू शेयर, समाज कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पश्चिम, TCPC संतपुरा गुरुद्वारा के पीछे, तिलक नगर, नई दिल्ली 18। फोन, ईमेल। समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है और उनके जीवन काल की संध्या में उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। पात्रता मानदंड, व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। आवेदक की तिथि से पहले दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष का निवास। सभी स्रोतों से आवेदक और पति या पत्नी की पारिवारिक आय 1 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। किराया, बचत और निवेश पर ब्याज, लाभांश, खाते की आय, संपत्ति बिक्री आय आदि सहित। आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता होना चाहिए जो NPCI पर आधारित के आधार से लिंक हो। इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोतों से किसी पेंशन वित्तीय सहायता का लाभ न ले रहा हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित दस्तावेज, आयु प्रमाण, नीचे उल्लिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं। तालिका 1.2। SDM जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,
मतदाता कार्ड, पिछली बार उपस्थित कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, टीकाकरण, मैट्रिक 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आयु निर्धारण, मेडिकल प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, राशन कार्ड। एमसीडी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, पिछली बार उपस्थित कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिक 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, टीकाकरण कार्ड, आयु निर्धारण, मेडिकल प्रमाण पत्र। आधार जन्म तिथि आयु के लिए मान्य नहीं है। निशान निवास का प्रमाण, नीचे उल्लेखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं। तालिका 1.3 राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, परिवार के किसी सदस्य का बीमा पॉलिसी दस्तावेज, टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड, रसीद, बैंक पासबुक, एसडीएम जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन, बिजली का बिल, पानी का बिल, दिल्ली में इलाज का मेडिकल रिकॉर्ड जिसमें दिल्ली का पता लिखा हो, दिल्ली में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, एसडीएम जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज, टेलीफोन बिल, विद्यार्थी पहचान प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कंपनी का सेवा पहचान पत्र। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा जारी किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज जो निवास स्थान दर्शाता हो। बैंक खाता नंबर, एकल खाता, 60 से 69 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक आवेदकों के मामले में धार्मिक संस्था से विधिवत सत्यापित आवेदक को धर्म की स्वघोषणा, आवेदक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, पासपोर्ट पर ही दिए गए प्रारूप में आय का स्वघोषणा नोट, आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सहायता के लिए राशि 60 से 69 वर्ष की आयु के बीच लाभार्थी के लिए 2000 रुपये प्रति माह, 70 वर्ष की आयु तथा उससे अधिक के लिए लाभार्थियों के लिए 2500 रुपये प्रति माह, केवल 60 से 69 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक धर्म वर्ग के व्यक्तियों के लिए 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल district.delhi.gov.nic.in पर लॉगिन के माध्यम से पंजीकरण करके या संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करके ऑनलाइन किया जाना है। समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आवश्यक विशेष अवस्था वाले व्यक्ति को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन योजना। लक्षण एवं तथा उद्देश्य, देखभाल की उच्च लागत को देखते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की देखभाल
की सुविधा प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा प्रदान करना ताकि वे समाज में अपनी भूमिका और क्षमता को पूरा कर सकें और सम्मान का जीवन जी सकें। विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों व उनके परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करना। पात्रता मानदंड, आयु वर्ग जन्म से मृत्यु तक, न्यूनतम विकलांगता 40%, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत आने वाली दिव्यांगता, आय निवास, बैंक खाते के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के लिए वित्तीय सहायता में उल्लेखित अन्य पात्र मानदंड। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित दस्तावेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारत सरकार के अधिसूचित अस्पतालों के मेडिकल वार्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड की एक प्रति, सहायता की राशि 2500 प्रति माह, निवास प्रमाण पत्र, नीचे उल्लिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं। राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, परिवार के किसी सदस्य का बीमा पॉलिसी दस्तावेज, टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड, रसीद, बैंक पासबुक, एसडीएम जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन, बिजली का बिल, पानी का बिल, मेडिकल, दिल्ली में इलाज का मेडिकल रिकॉर्ड जिसमें दिल्ली का पता लिखा हो, दिल्ली में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, एमसीडी, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज, टेलीफोन बिल, विद्यार्थी पहचान प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कंपनी का सेवा पहचान पत्र, बैंक खाता नंबर, एकल खाता जो एनपीसीआई पर आधार नंबर से लिंक हो, आवेदक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, पासपोर्ट पर दिए गए प्रारूप में आय का स्व घोषणा। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल e-district.delhi.gov.nic.in पर लॉगिन के माध्यम से पंजीकरण करके या संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करके ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है। समाज कल्याण विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना का उद्देश्य मृत प्राथमिक आजीवित अर्जक पुरुष या गृहिणी महिला के परिवार के उन सदस्यों को सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिसके पास तत्काल वित्तीय कठिनाइयों में सहायता के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना, इस योजना का उद्देश्य मृत प्राथमिक आजीविक अर्जक पुरुष या गृहिणी महिला के परिवार के उन सदस्यों को सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास तत्काल वित्तीय कठिनाइयों में सहायता के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। पात्रता मानदंड, मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात आजीविका अर्जक की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष की आयु का था। आजीविका अर्जन को परिवार के उस सदस्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी कुल घरेलू आय में कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है।
आय, निवास, बैंक खाता, आधार के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था पेंशन योजना में उल्लिखित अन्य पात्र मानदंड। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित दस्तावेज: निवास का प्रमाण पत्र, तालिका 1.1 में उल्लेखित दस्तावेज। तालिका 1.1 राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, रसीद, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, बिजली का बिल, पानी का बिल, भाड़ा अनुबंध, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, कोई अन्य दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से दर्शाता हो कि आवेदक और मृतक दोनों दिल्ली के निवासी हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक तथा मृतक के बीच संबंध का प्रमाण। आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैंक खाता जो एनपीसीआई पर आधार से लिंक हो। नाबालिग के मामले में CWC द्वारा घोषित अभिभावक, पालक, माता पिता, उपयुक्त व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता। दिव्यांग आश्रित आवेदक के मामले में दिव्यांग प्रमाण पत्र। आवेदक का आधार कार्ड। नाबालिग के मामले में CWC द्वारा घोषित अभिभावक, बालक, माता पिता, उपयुक्त व्यक्ति के आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी। तालिका 1.2 उल्लेखित दस्तावेज में से किसी एक के माध्यम से मृतक की आय का प्रमाण। तालिका 1.2 MCT जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, पिछली बार उपस्थित कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिक 10वीं कक्षा प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, टीकाकरण कार्ड, आयु निर्धारण, मेडिकल प्रमाण पत्र। नोट: आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड का वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य है। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन शमशान भूमि प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद, मृत्यु के समय के अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नोट: यदि मृत्यु दिल्ली के बाहर गांव में हुई है और अंतिम संस्कार शमशान घाट की रसीद के बिना गांव में हुआ है तो गांव के खंड विकास अधिकारी BDO द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। सहायता के लिए राशि: एक मुश्त राशि 20,000 रुपये की सहायता। आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.delhi.gov.in पर लॉगिन के माध्यम से पंजीकरण करके या संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करके ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है। श्रीमती सुश्री। विषय विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा पेंशन योजना में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के संदर्भ में। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा पेंशन योजना के लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाटाबेस में होना आवश्यक है।
अतः आपसे निवेदन है कि पत्र प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर अपना मोबाइल नंबर जिला कार्यालय पश्चिम निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरिनगर, नई दिल्ली 64 में उपस्थित होकर आपके सैंक्शन संख्या से अपडेट करवाएं। इस कार्य के लिए आप किसी भी कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकती है। जिला एवं महिला विकास विभाग अधिकारी पश्चिम, जिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी पश्चिम, महिला एवं बाल विकास अधिकारी पश्चिम। F number DOW DWCD admin 2324 dated memorandum. It has been observed by welfare officers of District Office West DWCD that on 1st July 2023 all staff of District Office West DWCD was not available in office to perform their duties during duty hours without prior sanction approval by the higher authority, which has been viewed very seriously. Now all staffs of District Office West DWCD is hereby directed to submit explanation within 3 days on receipt of this memorandum. Otherwise it will be assumed that you have nothing to say about this indiscipline behavior, and disciplinary action would be initiated against all the staff of District Office West DWCD. Welfare Officer, District Office West DWCD. Copy for information, District Office West DWCD. The Deputy Director Admin ISBT Building Kashmiri Gate, Deputy Director CPU ISBT Building Kashmiri Gate, PS2 Director Ground Floor ISBT Building Kashmiri Gate, Welfare Officer District Office West DWCD.